اچھا جی گائز، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ابھی لاہور کے جو موسم کے حالات ہیں بہت ہی زیادہ بہترین ہو چکے ہیں. ابھی بارشیں بہت زیادہ کم ہو چکی ہیں، دھوپ نکلی ہوئی ہے. یہ پوائنٹ پلاس سوسائٹی کے باہر ہوں میں. یہ اس طرف سارا دریائی علاقہ ہے. تو ابھی سنا کہ اچھا جی گائز، ابھی ہم واپس آ چکے ہیں باہر کا موسم آپ کو دکھا کر. تو ابھی ہم ویس بھائی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ویس بھائی. وعلیکم السلام، کیا حال ہے، کیسے ہیں ویس بھائی؟ آپ نے السلام علیکم جی. آپ اچھا، تو ویس بھائی میں نے بات یہ آپ سے کرنی تھی. آپ نے کہا تھا کہ میرے پاس 3-4 لڑکے ہیں جن کے گھر میں وہ نقصان ہوئے ہیں سیلاب کی وجہ سے، تو ہمیں ان سے ملائیں آپ ابھی. جی، سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ. آپ رضا بھائی کے چینل کے تبسم کی وجہ سے ہم آپ لوگوں کو کچھ چھوٹے چھوٹے جو بھی ملک میں جو ہمارے ساتھ جو بھی ایسا ہوتا ہے ہم آپ کو دکھا پاتے ہیں. ایک ذریعہ یہ، آپ اس کو لائک کیا کریں اور یہ آپ کی مہربانی ہے. جو آپ دیکھتے ہیں اسے ہمیں پسند کرتے ہیں. آپ ہیں تو ہم ہیں، اور آپ کی وجہ سے ہمارا چینل ہے. کیا ہم آپ سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں. ہمارے سب سے پہلے بھائی پٹھان سے آئے ہیں، پشاور سے. السلام علیکم. کہاں سے آپ پہلے یہ بتائیں؟ میں ضلع خیبر سے ہوں، پشاور. یہاں پر بیٹھ سکتا ہوں؟ ہاں بیٹھو. جی. اچھا کہاں؟ کیسے ہو؟ ضلع خیبر. ضلع پشاور، ضلع خیبر. اچھا، پشاور ضلع خیبر سے ہمارے بھائی آسم بھائی. تو ان کے ساتھ بھی یہی جو کیا نام ہے قدرتی آفت آئی ہے جو صحیح ہے نا، تو یہ تو سب کے ساتھ ہے، ایک بندے کے ساتھ تو ہے نہیں. اللہ پاک خیر کرے. اب ان سے پوچھتے ہیں وہاں کے کیا حالات ہیں اس وقت، وہاں پر کیا صورت حال. اویس بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اور سیلاب کی بات کی آپ نے. ہماری طرف پشاور میں اور ادھر ہمارے علاقوں میں بھی سیلاب آیا ہوا ہے. ادھر پنجاب میں بھی آیا ہوا ہے، بہت نقصان کیا. ادھر بھی ادھر بھی افغانستان تک بہت سے نقصان ہوا سیلاب نے کیا. تو ٹھیک ہے، سیلاب اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے اور ایک امتحان بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلا بات یہ کہ ہم مسلمان بھائی جتنا بھی ہے، پنجابی ہے، عربی ہے، پٹھانی، جو بھی ہے، لیکن میں سب سے پہلا میں نے بہت ریسرچ کیا، بہت سوچ کیا میں نے. لیکن زیادہ تر لوگ ادھر نماز کے لیے ترجیح نہیں دیتا ہے. وہ صرف جمعے کی 2 رکعت پڑھتا ہے. باقی نہ کوئی فکر کر رہا ہے، نہ کوئی، بس اپنے ڈیوٹی کر رہا ہے صحیح طریقے سے اپنا ڈیوٹی کر رہا ہے. باقی نمازوں کا اور اسلامی جتنا بھی اصل جو سی ڈیوٹی ہے نا وہ ہے آپ کی بات. اب وہ چاہے آپ نماز کی صورت میں کریں، جس صورت میں کریں، یہ ڈیوٹی اگر آپ پوری کریں تو آپ کی باقی ساری ڈیوٹیاں وہ ہو جائیں گی. پہلے نماز. اب میری بات تو سن. میں نے خود ایک حدیث سنا ہے کہ جنگ کے دوران میں بھی، جب جنگ شروع ہو تو اس کے دوران میں بھی نماز کا چھوڑنا نہیں آیا. ٹھیک ہے. بالکل. میں نے ایک حدیث سنا ہے کہ زن کا دن کے وقت آخری سانس تک نماز کا چھوڑنے کا حکم نہیں آیا. تو پھر ادھر میں نے بہت سا لوگ دیکھے ہیں لیکن صرف وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، باقی بالکل ایسے کوئی فکر نہیں ہے کہ یار. اور یہ ذمہ داری ہم لوگوں کا ہے، بت پرستوں کا نہیں ہے، چائنیزوں کا نہیں ہے، رشین کا نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کا ذمہ داری ہے، اور خاص کر مسلمانوں کا ذمہ داری ہے. آپ دیکھ لیں مسلمان آج کل کیا عیاشی کر رہا ہے، کیا کیا کرتے ہیں آج کل. 2 روپوں کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھی بات کہ ہم ان سے ہی پوچھیں گے وہاں پر نقصانات کیا ہوئے ہیں. اس بہت سا نقصان ہوا، بہت نقصانات ادھر ہوا. مال مویشی اس میں لے کے گیا سیلاب. جانی نقصان بہت کیا اس میں. سیلاب نے کیا تھا، لوگ مار کیا، شہید کیا سیلاب نے. اور دوسرے اوپر سے زلزلے آئے ہوئے، زلزلے بھی آئے ہوئے. افغانستان میں بہت لوگ شہید ہوا، اور پختونخوا میں بھی لوگ تو نہیں شہید ہوئے زلزلے کی وجہ سے، لیکن پھر بھی زلزلہ آیا ہوا ادھر پختونخوا میں بھی. اچھا ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. پھر آپ سے انشاءاللہ ملیں گے. ناظرین جیسے کہ آپ یہ تھے ہمارے عاصم بھائی ضلع خیبر سے. تو انہوں نے اپنے وہاں کے عذاب کے بارے میں بتایا. عذاب کیا؟ قدرتی آفت ہے. جیسے کہ انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں اپنا بارشوں کے ساتھ، سیلاب کے ساتھ زلزلے بھی آئے ہیں. تو وہاں پر جو حالات، جو اس وقت وہاں کے کیا کہتے ہیں مناظر ہیں، وہ ہم بتا تو نہیں سکتے، لیکن کوشش کریں گے آپ کو کسی نہ کسی ویڈیو میں آپ کو وہ چیز دکھائیں، وہ جیسے بھی ہو سکا. تو اب یہ ہے کہ آگے ہم چلتے ہیں. جو ہمارے دوسرے بھائی آئے ہیں ان کے تو تھوڑا چلتے آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے؟ اچھا پہلے آپ 1 to 1 بتائیں ذرا کہ آپ لاہور کون سی جگہ سے؟ میں چونک سے، تھیم پارک ہوئی سوسائٹی سے.
थीम पार्क। सर आपका नाम तो पहले बताएं। मेरा नाम अली रज़ा। अली रज़ा भाई, अली रज़ा भाई हमें हमारे पास आए, बड़ी मुश्किल से इनको बुलाया, उनकी बहुत मेहरबानी, बल्कि इन तीनों की बहुत मेहरबानी कि ये तीनों आए हमारे कहने के ऊपर, क्योंकि जो हालात है, सामान निकालना, घर वालों को सेफ जगह पे पहुंचाना, और जो भी मामला होते हैं वो ज़िंदगी का साथ है, खाना पीना वो तो सबके साथ है। अब इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। जी सर। जी, अच्छा, क्या हालात है इस वक्त चूंक के? चूंकि इस वक्त ये हालात थीम है, पार्क। थीम पार्क है अच्छा, ना, थीम पार्क और चूंक के अंदर कितना है डिस्टेंस? तकरीबन 1 किलोमीटर मैक्सिमम बन जाता है, उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा। और वो हमें इस तरह हुआ है कि हम रात को घर पे थे, लेकिन रात के 1 बजे का टाइम था, वहाँ पे गए हैं कुछ। अच्छा सर, जिस टाइम ये क्या नाम है अपना पानी आया, सैलाब का हाँ पानी, जी। तो उस वक्त आप कहाँ थे, क्या वहाँ शुरू से बताएं आप। उस टाइम तो हम लोग घर पे थे, घर पे बैठे हुए थे, रात को सोने लगे थे, सिर्फ पता चला था कि ये ना सैलाब का आने का खतरा है, तो वहाँ पे जाके देखा पानी बिल्कुल ठीक है। पता था आपको पहले से कि पानी आना है? पता था, लेकिन ये नहीं था कि इतना ज्यादा आ जाएगा। इन्फॉर्म आपको क्या नाम है गवर्नमेंट की तरफ से आपको बताया गया था? गवर्नमेंट की इन्फॉर्म तरफ से था रात को 12-1 बजे हमें बताया गया। मतलब क्या कहते हैं अपना, गवर्नमेंट की तरफ से आपको इतलात थी? हाँ जी, 12-1 बजे उन्होंने कहा है। हाँ। फिर उसके बाद हमने खुद जाके देखा वहाँ पे। अच्छा। कि वहाँ पे यानी कि कोई इस तरह का खतरा वगैरह तो नहीं, वहाँ पे पानी बिल्कुल ठीक था। रात को तकरीबन 3:30 बजे भी जाके देखा, फिर भी ठीक था। जब सुबह 6 बजे हम फिर से गए ना, तब पानी हमारी गली से थोड़ा सा दूर था, लेकिन पानी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से करके हमने सिर्फ अपनी फैमिली को बाहर निकाला है, बाकी सारा घर का जो सामान है वो उसी के अंदर ही है, घर के अंदर। अच्छा। फिर वहां से निकले हैं बड़ी नहीं, जैसे कि आप कह रहे हैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही बता दिया गया था, तो आपने पहले ऐसी जरूरत क्यों नहीं की निकलने? वो इसी वजह से नहीं की क्योंकि रात के टाइम आपको पता है जल्दी कोई नहीं बात सुनता। रात के 1-1:30 बजे का टाइम था, रात के 1-1:30 बजे अगर सामान निकालते तो हम किधर रखते सामान? अच्छा। यही मसला था, ना तो रहने के लिए कोई घर था ना कुछ था, यही एक घर था जिसमें हम रह रहे थे। तो अभी आप लोग कहाँ पर? अभी यहाँ पे ये कैंप वगैरह इन्होंने लगाया हुआ है, मरीम नवाज वगैरह ने, तो उधर कैंपों पे ही हम लोग रह। अच्छा जी नाज़रीन, ये सबसे बड़ी खबर आपको बताया कि मरीम नवाज साहिबा ने, वज़ीर आज़म पंजाब, जिन्होंने कैंप भी इनको फराहम किए हैं, और उनका हम शुक्रगुजार हैं। वो जो हमारी कौम, हमारे इन भाइयों के साथ जो ताउन कर रही हैं, ये उनको हमारा सलाम है, काबिल इज्जत है वो हमारे लिए। तो अब हम इनसे पूछते हैं। अच्छा जी सर, आपके साथ क्या हुआ? सर हमारा घर डूब गया। ठीक है, तो गाइस आके पूछ लो। कितना मतलब कहाँ था आपका घर? सर मेरा घर चूंक में था। ठीक है, सामान ही निकाला गया, पूरा घर मेरा डूब गया। ठीक है, हमने सिर्फ जियो को निकाला है, और थोड़ा सा सामान भी नहीं निकला, सारा सामान ही अंदर है, कपड़े भी नहीं निकले। ठीक है, तो हम बहुत परेशान है, लिहाजा हम अभी आप कहाँ पर है? आप भी खैमों में? नहीं, हम कैमरे में नहीं, हमें हमारा अपना घर था। माशाल्लाह चाचू का घर डूब गया, तो हमारा घर ठीक बच गया। ये जगह हमारे चले माशाल्लाह, ये अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि इनका एक घर डूब गया और एक घर बच गया, जिसके अंदर ये सब रिहाइश पजीर हैं। अब हमारे साथ हमारे दूसरे भाई हैं, तो इनसे पूछते हैं वहाँ के सूरत हाल। अच्छा शहजाद साहब बताएं, वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है? साद रहमत है, मैं मसीही रिलीजन से तल्लुक़ रखता हूँ। चूंक एरिया में रहते हैं हम, हमारे साथ ही थीम पार्क एरिया, वहाँ पे भी पानी काफ़ी खड़ा, और वहाँ अच्छा, आपके साथ थीम पार्क है? आप थीम पार्क में रहते हैं? जी, मेरे साथ ही थीम पार्क है। हम अच्छा। चूंक में रहने वाले, चूंक के जो एरिया, हम नीचे वाले साइड पे रहने वाले, वहाँ पर भी पानी है। कई लोगों की हवेलियाँ जो जानवर वगैरह रखते हैं, उनकी हवेलियाँ डूब गई हैं, और कई लोगों को काफ़ी नुकसान, कई लोगों की दीवारें गिर गई, पानी के बोर जो है वो भी तबाह हो गए, बड़े लोग परेशान हैं। अच्छा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ना क्या कहते हैं, जैसे आप सब जानते हैं, भाई ने बताया कि ये इनके साथ भी वही मामला हुए जो सबके साथ हुए हैं। पानी का बहाव इतना था कि उसने नहीं देखा कि कौन है कौन नहीं है। बेशक ज़मीन दरिया की थी या दरिया की नहीं थी, ये खुदा बेहतर जानता है, लेकिन ये है कि ये सब यही बताएंगे, इनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। ये वहाँ के रिहाइश पजीर हैं, मकामी हैं, ये चीज़ यही बता सकें। अच्छा, ये जो ज़मीन है ये दरिया की ज़मीन थी या? जी सर, दरिया के करीब तो हम रहते हैं, लेकिन जो जहाँ पे हमारे घर वो दरिया का एरिया नहीं है, दरिया के पीछे है। आगे फसलें आती हैं, फसलों के बाद एक रहायशी एरिया था, वहाँ पर हम रहते हैं। नहीं, ये जो जमीन है जहाँ पर ये थीम पार्क है, ये पुनः दरिया की जमीन है या अलग सोसाइटी? ये जो थीम पार्क ये दरियाई एरिया ही था, लेकिन कुछ लोगों ने जो क्या कहेंगे उनको, जो बदमाश टाइप के लोग थे या अपना असर और सुरूर दिखाते थे, उन्होंने कुछ दे लेके अपना पैसे ज़मीन अपने नाम करवाई, किसी को पैसे दिए किसी को नहीं दिए, लेकिन उन लोगों ने आगे लाखों में बेची है ज़मीन। और मेरे जैसे और भी भाई हैं जो बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं।
2-2 मंजिलें लोगों की डूब चुकी हैं, ऊपर से बस टैंकियां नजर आती हैं, जो सामान था सारा उन लोगों का गर्क हो गया। मौजूदा सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी, मौजूदा सूरत हाल ये है कि कई बहनों का जो होता है सामान जहेज का होता है वो भी डूबा पड़ा है, परेशान लोग हैं, पानी के बोर तबाह हो गए हैं। आज अगर हम एक बोर ही करवाएं तो 2 लाख 1.5 लाख इतना आराम से लग जाता है। तो वहाँ पे मेरे ऐसे भाई जाते हैं जो सिर्फ चावलों का एक डब्बा लेके चले जाते हैं, तस्वीरें लेते हैं और अपना फोटो शूट करके इस तरह का कुछ पता नहीं क्या करते हैं, हमें तो समझ नहीं आ रही। अगर मेरे तमाम भाइयों से गुजारिश है, अगर आप फंसे हुए लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनके पास जाएं, उनसे पूछें भाई आपका नुकसान कितना है। अगर आप कर सकते हैं तो जाएं, नहीं कर सकते तो दुआ अपने घर पे बैठ के दुआ कर लें। जी बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, हम आपके शुक्रगुजार हैं। जैसे कि जी आप जानते हैं इन्होंने बताया कि कुछ बहनों की शादियों का सामान था, जहेज वगैरह था, वो भी पानी की नज़र हो गया, पानी ने ही अब अपने साथ बाहर ले गया। और जैसे कि आप बताते हैं कुछ लोग आते हैं, सेल्फी बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, 1 डब्बा बिरयानी का देते हैं और वो खुदारा ऐसा ना करें। करना है तो भरपूर तरीके से करें, करना है तो भरपूर तरीके से करें, वरना आप जैसे भाई ने कहा घर बैठ के दुआ कर दें। करने के लिए सिर्फ ये नहीं कि बिरयानी के डब्बे से पेट भर जाएगा, घर उनको छत की ज़रूरत है, पेट अल्लाह भरा देता है। उनको छत चाहिए, रहने के लिए कोई जगह चाहिए, उनको सोए सेफ मकामात पर पहुँचाया जाए, उनके बच्चों का, उनके घर वालों का, उनकी माँ बहन बेटियों का, उनकी नहीं वो हमारी माँ बहन बेटियाँ हैं, उनका ख्याल करें। उन हो सके तो जितना हो सकता है आप उनके लिए करें। हुकूमत कर रही है और हुकूमत के साथ साथ आप भी अगर हुकूमत के साथ खड़े होंगे तो इंशाल्लाह ये काम बहुत अच्छा होगा। आप जी नाज़रीन, जैसे कि आपने जैसे सारी वीडियो आप देखेंगे इंशाल्लाह, और इसके ऊपर आप सबने हमें लाइक करना है। ये चैनल है रज़ा खोखर साहब का, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो कुछ हो सकता है कमेंट्स करें और जितना हो सकता है इंसानियत का ख्याल करें, इंसानियत को उजागर करें। अस्सलाम।